اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ خیر مقدم ہے آپ کا کلاس 10th جیوگرافیہ میں۔ ہم پڑھ رہے ہیں واٹر ریسورسز، اور اس میں ہم پچھلے لیکچر میں بات کر رہے تھے ملٹی پرپز پروجیکٹس، ایڈوانٹیج اور ڈس ایڈوانٹیج۔ تو آج ہمارا جو ٹاپک ہوگا وہ ہے رین واٹر ہارویسٹنگ۔ تو ہم نے دیکھا کہ جو ملٹی پرپز پروجیکٹس ہیں تو ان کے بہت ساری ڈس ایڈوانٹیجز ہے، اور دیئر از رائزنگ ریزسٹینس اگینسٹ دا ملٹی پرپز پروجیکٹس، یعنی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کی بہت زیادہ، جہاں ان کی بہت زیادہ خوبیاں ہیں تو وہاں ان کے اور زیادہ کیا کہہ سکتے ہیں ہم، ان کی ویک پوائنٹس بھی ہے، ڈیمیرٹس بھی ہے، ڈس ایڈوانٹیج بھی ہے۔ اور اب کوئی جو اس کا متبادل ہوگا، جو اس کا الٹرنیٹیو ہوگا، یعنی ملٹی پرپز پروجیکٹس کا جو ویبل الٹرنیٹیو جو ہے، جس کو ہم بولتے ہیں واٹر ہارویسٹنگ سسٹم۔ چونکہ جو واٹر ہارویسٹنگ سسٹم، اس کو کہا گیا ہے سوشیو اکنامکلی اینڈ انوائرمنٹلی ویبل الٹرنیٹیو، یعنی اگر کوئی ان ملٹی پرپز پروجیکٹس کو کیا ریپلیس کر سکتا ہے، وہ ہے واٹر ہارویسٹنگ یا رین واٹر ہارویسٹنگ، جس کو اس میں ہم نے کہا سوشو اکنامکلی اینڈ انوائرمنٹلی ویبل الٹرنیٹیو۔ سوشو ہو گیا سوسائٹی سے، چونکہ ہم نے دیکھا کہ جب آپ ملٹی پرپز ڈیم بنا رہے ہو تو اس میں لوگ ڈسپلیس ہو جاتے ہیں، ڈسپلیسمنٹ آف ویریس کمیونٹیز، اور اس میں بہت زیادہ لاگت بھی لگتی ہے، اکانومیکلی وہ بہت زیادہ ایکسپینسو ہے۔ جب آپ واٹر ہارویسٹنگ کی بات کرتے ہیں تو یہ زیادہ اس میں یہ کیا کہہ سکتے ہیں ہم کہ اکنامکلی ایکسپینسو نہیں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ انوائرمنٹ فرینڈلی بھی ہے۔ یعنی جب آپ رین واٹر ہارویسٹنگ کریں گے تو اس کا کوئی برا اثر آپ کے انوائرمنٹ پر بھی نہیں پڑتا ہے۔ تو اسی لیے ہم نے کہا کہ جو ملٹی پرپز پروجیکٹس جو ہے، اس میں واٹر ہارویسٹنگ سسٹم ایک وائبل الٹرنیٹیو ہے، کیونکہ یہ سوشو اکنامکلی اور انوائرمنٹلی کیا ہے، ویبل الٹرنیٹیو ہے، اور یعنی ان کے یہ ایکسپینسو بھی نہیں ہے، اور اس سے بہت سارے لوگ ڈسپلیس بھی نہیں ہو رہے ہیں جو آپ کا، اور یہ انوائرمنٹلی ایکو فرینڈلی ہے۔ یعنی اس سے جب ہم نے دیکھا کہ ڈیمز سے بہت سارے فلورا اور فونا اسپیشیز کیا ہو جاتی ہے، ایکسٹنکٹ بھی ہو جاتی ہے، یا ان کا ہیبیٹیٹ کیا ہو جاتا ہے، ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور وہ پانی میں سبمرسڈ رہتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو رین واٹر ہارویسٹنگ یا واٹر ہارویسٹنگ ایک ویبل ایک کیا ہے، الٹرنیٹیو ہے۔ اور سنس اینشنٹ ٹائمز انڈیا کے پاس سوفسٹیکیٹڈ ہائیڈرولک اسٹرکچرز تھے، ٹھیک ہے، یعنی جو آج ہم بول رہے ہیں کہ واٹر ہارویسٹنگ سسٹم، یہ سنس ویری لانگ انڈیا میں یہ واٹر ہارویسٹنگ سسٹم کو پریکٹائز کیا جاتا تھا، اور لوگوں کو بہت زیادہ اس کی جو واٹر ہارویسٹنگ سے ریلیٹڈ بہت زیادہ ان کو ٹیکنیکس معلوم تھی کہ رین واٹر کو یا کیسے ہارویسٹ کیا جائے، گراؤنڈ واٹر کو کیسے ریچارج کیا جائے، اور ریور واٹر اور فلڈ واٹر کو کیسے لوگوں سے دور رکھا جائے، اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ یعنی اس واٹر ہارویسٹنگ کی، یعنی واٹر کو کیسے ہم کیا کریں، کلیکٹ کریں، اور جب ایک ایسا ٹائم آتا ہے سال میں کہ جس وقت ہمارے پاس واٹر اویلیبل نہیں ہوتا ہے، لیکن جب ہم نے اس واٹر کو کلیکٹ کیا ہوگا، چاہے یہ رین واٹر ہے، تو اس وقت کس طرح سے ہم اس کلیکٹ کیے گئے واٹر کا استعمال کر سکتے ہیں، تاکہ ہم جو سمرس میں یا جب ڈراٹ کی صورتحال ہوتی ہے تو اس وقت جو ہم نے واٹر ہارویسٹ کیا ہوگا رینی سیزن میں یا عام حالات میں جب رین ہوتی ہے، تو اس کو ہم ڈفرینٹ پرپز کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو اس کی جو مثال ہے کہ جو ہلز اور ماؤنٹینس ریجنز میں وہاں پر گلز اور کلز بناتے تھے، یعنی جو ماؤنٹین کا ہل ٹاپ ہوتا تھا اس میں کیا بناتے تھے ہم، اگر یہ آپ تھوڑا سا دھیان دیں گے ادھر، اگر یہ
अगर ये माउंटेन है, ठीक है, इसका जो हिल टॉप है, यहाँ पर हम एक गड्ढा बनाते थे 1 पाउंड सा, और उसमें वो वाटर जमा रहता था। फिर हम इसको क्या करते थे, फिर उसको डाउन द स्ट्रीम इसको लाया जाता था, और इसको चैनल्स के ज़रिए से हम डाइवर्जन देते थे। और ये जो वेस्टर्न हिमालयाज़ में एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट मेथड है जिसको हम बताएंगे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, जिसको हम बोलते हैं रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। तो ये बहुत ये चूंकि एक पॉपुलर भी है, और आजकल ये राजस्थान में प्रैक्टिस किया जाता है, और आज बड़ी बड़ी सिटीज़ में भी रेन वाटर रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है, ताकि हम इसको जो रेन वाटर है, जो हमारे रूफ टॉप जो हमारे मकान होते हैं, उनका जो छत होता है, उस पर जो बारिश गिरती है उसको हम कलेक्ट करते हैं एक टैंक में, और इससे हम ग्राउंड वाटर को रिचार्ज भी करते हैं। और साथ ही साथ जब हमें वाटर अवेलेबल नहीं होता है तो उस वक्त हम इस वाटर को डिफरेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से जो हमारे फ्लड प्लान्स बंगाल में है, तो वहाँ पर हमारे पास होता है इनअंडेशन चैनल्स, ठीक है। तो उसे क्या करते हैं हम कि जब वहाँ पर जो फ्लड प्लान्स होते हैं, अगर फ्लड आ जाता है तो उस वक्त हम उसको क्या देते हैं, किसी रिवर का हम डाइवर्जन देते हैं, उसको हम फ्लड चैनल्स के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह से हम उसके ज़रिए से भी अपने फील्ड्स को इरिगेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो एरिड और सेमी एरिड रीजन्स हैं, ठीक है, वहाँ पर जो एग्रीकल्चर फील्ड्स को, यानी जैसे हमारा जो डेजर्ट एरिया है, राजस्थान का इलाका है, तो वहाँ पर क्या किया जाता है, जो हम खेत होते हैं उनको चारों तरफ से क्या किया जाता है कि थोड़ी सी ऊंची क्या किया जाता है, उनको थोड़ा सा चारों तरफ से बांध दिया जाता है, और जब रेन वाटर आ जाता है तो उसको अलो किया जाता है उस फील्ड में जमा होने के लिए, ठीक है। यानी जब बारिश होती है, वो बारिश का पानी खेतों में क्या किया जाता है, कैद किया जाता है, बंद किया जाता है, ठीक है। और इस तरह से क्या हो जाता है, उस वाटर को, रेन वाटर को हम फ्लो नहीं होने देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो जाता है कि जो वो वाटर उन खेतों में जमा रहता है, तो वाटर जो सॉइल होती है वो उस वाटर को एब्जॉर्ब करती है। क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है। फिर जब वहाँ पर बारिश नहीं, जब एब्जॉर्ब किया तो सॉइल के अंदर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है, इसको हम बोलते हैं खादिन्स इन जैसलमेर और जोहार्ड्स इन अदर पार्ट्स ऑफ द राजस्थान। यानी अगर हमारे पास ज़मीन का एक टुकड़ा है, उसके चारों तरफ हमने ऊंची थोड़ी सी क्या बनाई, छोटी सी एक दीवार बना दी, और जब बारिश का पानी हो जाता है वो उसमें जमा रहता है, ठीक है। और वो बारिश का पानी जो ज़मीन होती है वो उसको जज़ब कर लेती है, और इस तरह से जो बारिश का पानी ज़मीन के अंदर चला जाता है और उसमें मॉइस्चर बहुत देर तक रहता है, ठीक है। और इस तरह से क्या हो जाता है कि जो ज़मीन उस मॉइस्चर को अपने अंदर रखती है, और जब हम उस पर बुआई करते हैं तो हमारी फसलों को बहुत देर तक मॉइस्चर मिलता है, यानी वाटर मिलता है, क्योंकि उससे क्या हो जाता है कि जो सॉइल में मॉइस्चर बरकरार रहता है। तो ये ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे हम रेन वाटर को क्या करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, कलेक्ट करते हैं। और चाहे वो कुल्स और गुल्स के ज़रिए से हो, चाहे वो इसी तरह से क्या कह सकते हैं हम कि जोहार्ड्स और खादिन्स की तरह से हो। इसी तरह से हमारे जो सेमी एरिड और एरिड रीजन्स है राजस्थान, या पर्टिकुलरली इन बीकानेर, तो यहाँ पर क्या है, फ्लोडी और बर्मर, दीज आर द इसमें क्या हो जाता है कि जो ट्रेडिशनली जिसको हम बोलते हैं कि टैंक्स बनाती है, टंकास बनाते थे ड्रिंकिंग वाटर को स्टोर करने के लिए। अब ये एक समझो आपकी जो ये फ्लोडी है, ये एक तरह का एक कमरा है, ठीक है, एक बड़ा गड्ढा है जो एक कमरे की मानंद होता है, जो 6 मीटर्स डीप
और 4.2 मीटर्स लॉन्ग होगा और 2.44 मीटर्स वाइड होगा, ठीक है। तो अब इससे क्या हो जाता है कि अब जो आपके रूफ टॉप पर जो बारिश का पानी जमा हो जाता है उसको एक पाइप के जरिए से इस टैंक के साथ जोड़ा जाता है, ठीक है। और जो रूफ टॉप रेन वाटर जो उसको इस तरह से क्या किया जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है। कोर्टयार्ड में इसी तरह का एक टैंक बनाया जाता है, ठीक है। और फिर पाइप्स के जरिए से उसमें वो वाटर चला जाता है। और इसके बाद क्या किया जाता है कि जो रेन वाटर से जो रेन जब रूफ टॉप पर गिरती है, जो पहला सिपल होता है रेन का, उसको कलेक्ट नहीं करते हैं, उसको ड्रेन किया जाता है। क्योंकि रूफ टॉप पर क्या होती है, डस्ट होती है वगैरह होती है। तो उसके बाद जो दूसरा सिपल होता है, उसके बाद यहाँ पर आपकी इसमें फोटो में दिखाया गया है, तो उसको क्या किया जाता है, बाद में उसको कनेक्ट किया जाता है उस टैंक के साथ पाइप्स के जरिए से। इस तरह से रेन वाटर को कलेक्ट किया जाता है और उस टैंक में रखा जाता है। और बाद में इस रूफ टॉप इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि इस रूफ टॉप वाटर को, यानी रूफ टॉप, इसको हम बोलते हैं रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। इस तरह से एक बिल्कुल इकोनॉमिकल है, एक तरीका है कि हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, रेन वाटर को हार्वेस्ट कर सकते हैं। और इसको ड्रिंकिंग पर्पस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और इसको हम बोलते हैं, इस रेन वाटर को हम बोलते हैं पल्लर पानी, ठीक है, वहाँ पर। और कभी कभी कुछ हाउसेज में इस तरह से कंस्ट्रक्शन की जाती है, तो इसके नीचे अंडरग्राउंड रूम्स होते हैं, ठीक है, इसी टैंकी के एडजॉइनिंग एरिया में, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं कि समर्स में जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो लोग उस कमरे में चले जाते हैं और इस तरह से गर्मी से बच जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा तरीके हैं रूफ टॉप हार्वेस्टिंग। और हम इसके बाद ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के मुतालिक हम इंशाल्लाह अगले वीडियो में बात करेंगे। तो आज हमने देखा कि जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, ये अल्टरनेटिव है किसका, जो डैम्स है, मल्टीपर्पज़ डैम्स या मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स, उनके बहुत ज़्यादा नुकसान, डिसएडवांटेजेस है, तो उनका एक मुतबादिल बन सकता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो डिफरेंट मेथड्स हैं, इन डिफरेंट मेथड्स के ज़रिए से हम क्या कर सकते हैं, इस रेन वाटर को हम हार्वेस्ट कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, और जब हमें इसकी ज़रूरत होती है तो उस वक्त हम इसको यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।